Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Matter and Molecule. Let's learn about what is matter, change in matter, states of matter, solids and solutions, and molecules. What is matter? You have noticed many different materials or substances around you. All things living and non-living are made up of matter. Any substance that occupies a space and has weight is called matter. The pen, car, notebook, desk, water, etc. are all matter. It is found in three different states as a solid, liquid and gas. All of these, soil, water and air occupy space and have weight. So they are matter. सबसे पहले मैटर क्या है आपका? देखिए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी में क्या होते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग है, सभी मैटर से बने। तो कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका वेट होता है वो मैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास जितनी भी आपको चीज़ें दिखती हैं सब के सब मैटर है। डू यू नो मैटर ऑन अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। अर्थ पे जो भी मैटर पाए जाते हैं वो थ्री स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मॉलिक्यूल्स. All matter is made up of small particles called molecules. They cannot be seen with naked eyes. A molecule is the smallest unit of a substance that has all the properties of that substance. For example, a sugar molecule is the smallest particle of sugar. Each sugar molecule has the properties of sugar. अब molecule क्या है? देखिए जितने भी मैटर हैं एक्चुअली वो छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने, बहुत ही छोटे पार्टिकल से जिन्हें बोला जाता है मॉलिक्यूल्स। अब इनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो है आपका शुगर मॉलिक्यूल एंड हर शुगर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होंगी जो शुगर की होती है। एटम्स. Molecules are made up of still tiny particles called atoms. Every molecule has one or more atoms. Atoms are called the building blocks of matter. There are more than 118 kinds of atoms. These atoms join up in different ways to form molecules of all matter. Example, each molecule of oxygen contains 2 atoms of oxygen. This is written as O2. Similarly, a molecule of water consists of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. This is written as H2O. देखिए जितने भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से बने। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो और भी छोटे पार्टिकल से बने जिन्हें बोलते हैं एटम्स, राइट। एंड आपके पास मोर देन 118 एटम्स है। अब ये जो एटम्स है ज्वाइन अप होते हैं डिफरेंट वेज में जिससे कि वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है ऑक्सीजन, तो इसमें देखिए हर मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का है उसमें आपके 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। इसी तरह से वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि इसमें कितने हैं आपके पास, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें आपका क्या है 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Elements and compounds. Matter can be classified into elements and compounds. Element. Atoms of only one kind join together to form elements. Elements can exist in the form of metals such as copper, gold, iron, etc. or in the form of non-metals such as oxygen, hydrogen, nitrogen, etc. अब देखिए मैटर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें एक ही तरह के एटम्स जो होते हैं साथ में जॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जैसे कि अगर मेटल्स की बात करें कॉपर, गोल्ड, आयरन, इसी तरह से अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। Compound. When atoms of different kind combine, they form compounds. Therefore, a compound is made up of 2 or more kinds of atoms. For example, carbon dioxide, CO2 is made up of 2 different atoms, carbon and oxygen. अब compound क्या होता है, जब different kind of atoms combine हो जाते हैं तो वो बनाते हैं compounds. Okay? तो जो compound होता है वो हमेशा आपका बना होता है 2 या 2 से ज़्यादा kind of atoms से। For example, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसका फॉर्मूला होता है CO2। तो अब ये किससे बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। States of matter. Solids, tightly packed. In solids, the molecules are very close to each other. They attract each other with great force. Solids are hard, soft, big, and small like grains of sand. Solids hold their shape and they don't flow like a liquid. Solids have its definite volume and weight. अब देखिए आपको states of matter आपको पता है 3 states of matter है, solid, liquid and gas. सबसे पहले आपका है solid. Solid में क्या होता है कि molecules काफ़ी closely packed होते हैं, जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल में नजर आ रहा होगा। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेट फोर्स के साथ। तो आपके जो सॉलिड्स होते हैं हार्ड होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट या बिग होते हैं।
सॉलिड्स अपनी शेप को होल्ड करके रख सकते हैं, तो इसीलिए ये लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करते। और सबसे बड़ी बात इनका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड वेट। Liquids, loosely packed. In liquids, molecules are less closely packed in the comparison of solids. They do not have definite shape, but they do not have definite mass and volume. It takes the shape of its container. Liquids are similar to solids because their atoms are close together, but most liquid can move around. Liquids can change shape by flow. अब लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं जितने कि आपके सॉलिड में होते हैं। देखिए सॉलिड में कितने क्लोजली पैक्ड थे और लिक्विड में थोड़ा सा वो लेस क्लोजली पैक्ड है। अब इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, बट इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड मास होता है। अब ये जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालते हैं, जैसे अगर आपने ग्लास में डाला वो ग्लास की शेप ले लेगा, बकेट में डाला तो बकेट की शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स जो है अपनी शेप चेंज कर सकते हैं बाय फ्लोइंग। Gases, very loosely packed. Gases do not have definite shape or volume. Like liquids, gases take the shape of their containers. If a gas is not in a container, it will spread out indefinitely. This is because the atoms in a gas are spaced farther apart than in solid or liquid. Being spread out like this allows them to move around freely. The air you breathe every day is spread across the empty space around the earth. अब गैस में क्या होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ पे। तो इनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है डेफिनेट। अब लिक्विड्स की तरह जो गैसेज हैं वो भी कंटेनर का शेप ले लेती हैं। अगर गैस कंटेनर में नहीं है तो ये इनडेफिनेटली आपका मूव करेगा, इनडेफिनेटली इधर से उधर स्प्रेड होगा। जैसे कि आप एयर जो ब्रीथ करते हैं एवरीडे, वो कहाँ है, एक एम्प्टी स्पेस में वो स्प्रेड हो रखा है। गेट इट एट अ ग्लास, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उस पर डिफरेंस बताया गया है। सबसे पहले सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो in solids particles are tightly packed, in liquids particles are not tightly packed, and gases particles are very loosely packed. Solids have a fixed shape, liquids do not have a fixed shape, and they take the shape of the container they are poured into. Gases do not have a fixed shape and occupy all the space of the container. Solids, they cannot flow. Liquids, they can flow from a higher to a lower level. Gases, they can flow in all direction. अब देखिए solid आपके flow नहीं करते हैं, जबकि liquid flow करते हैं आपके higher से lower level में। एंड गैस की अगर बात करें तो ऑल डायरेक्शंस में फ्लो करती है। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखिए सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, बट गैसेस का नहीं होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। एग्जाम्पल, अगर सॉलिड की बात की जाए तो आपके है पेंसिल आइस, एंड लिक्विड में आपका है वाटर जूस, एंड आपकी गैसेस के एग्जांपल से एयर इनसाइड द बलून, एयर इनसाइड द टायर। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फॉर एग्जांपल फ्रॉम आइस टू वाटर and water to water vapor. Sometimes matter changes altogether to form a new substance. There are two kind of changes, physical change, chemical change. देखिए मैटर को एक फॉर्म से दूसरे में चेंज किया जा सकता है। जैसे आप वाटर से आइस बनाते हैं तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसी तरह से जब आइस से आपका वाटर बनेगा तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो दो तरह के चेंजेस होते हैं बेसिकली, फिजिकल एंड केमिकल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। When the change is only in state of matter, it is called a physical change. It is a temporary change. The kind of molecules remain the same. फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनेगा या गैस से लिक्विड बनेगा, राइट। तो ये टेम्पररी चेंज होता है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स के काइंड्स होते हैं वो सेम रहते हैं। इवेपोरेशन, व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। देखिए जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर पे चेंज हो जाता है। चेंजिंग of a liquid into gases is called evaporation. This is because on heating the molecules start moving faster. They become free and escape into the air in the form of water vapor and can move much more freely. तो जब आप लिक्विड को हीट करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे इवेपोरेशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि जब हीट किया जाता है मॉलिक्यूल जो है बहुत फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद ये फ्री हो जाते हैं और एयर में स्केप हो जाते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज अ चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स गैसियस फॉर्म वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर. Condensation generally occurs in the atmosphere when warm air rises, cools and loses its capacity to hold water vapor. As a result, excess water vapor condenses to form cloud droplets. Condensation आपका होता है प्रोसेस जिसमें आपका जो गैसियस फॉर्म है यानी वाटर का जो गैसियस फॉर्म है वाटर वेपर वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है. और कंडेंसेशन आपका जनरली कब होता है जब वार्म एयर राइज होती है देन कूल होती है और अपनी कैपेसिटी वो लूज कर देती है वाटर वेपर को होल्ड करने की.
इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं एंड क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनते हैं. Melting. Ice is solid. The particles in an ice cube are rigidly packed to give it a fixed shape. When it is kept in a warm place, the movement of water molecules and ice increases and they become free from the rigid form. They become loosely packed and form water. Ice आपका solid है, आपको पता है. अब पार्टिकल जो है आइस क्यूब पे वो रिजिडली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. बिकॉज क्यों? क्योंकि वो एक सॉलिड है. लेकिन जैसे ही आप उसे वार्म प्लेस में रखें तो क्या होगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी कि वो अपने रिजिड फॉर्म से फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक हो चुके हैं, अब वो वाटर बन गया. फ्रीजिंग. Freezing is a process in which something changes from liquid to solid as the temperature becomes slower. You know that water forms ice upon freezing. This is called freezing. When we cool water, its molecules slow down and come very, very close to each other. They pack into a rigid shape to form ice. Freezing आपका एक process होता है जिसमें आपका liquid solid में change हो जाता है. कब? जब आपका टेम्परेचर लो किया जाएगा. जैसे कि अगर आप आइस बनाते हैं तो कैसे बनेगा आइस? वाटर आपका लिक्विड फॉर्म है, आप उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, यानी जैसे फ्रीजर में रखते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. Remember, melting of butter, breaking of mirror, melting of ice cream, tearing of paper, cutting of clothes are all examples of physical changes. देखिए सारे ही एग्जाम्पल्स जो हैं आपके फिजिकल चेंजेस हैं, क्योंकि इनमें किसी की भी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं हुई है. Chemical changes. Sometimes when we heat or cool one or more substances, we get a new substance which cannot change back to the original substance or substances. This is a chemical change. A chemical change is a permanent change. कई बार क्या करते हैं हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को हीट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बन के निकलता है, और वो नया सब्सटेंस ऐसा होता है कि उसे हम उसके ओरिजिनल सब्सटेंस में, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, तो ये आपका केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज आपका परमानेंट चेंज होता है, यानी ये रिवर्सिबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पीस ऑफ पेपर इज कट अप इनटू स्मॉल पीसेस, इट इज स्टिल पेपर. दिस वुड बी अ फिजिकल चेंज. इफ द सेम पीस ऑफ पेपर इज बर्न, इट इज चेंज इनटू एश. दिस एश कैन नॉट गेट बैक द फॉर्म ऑफ पेपर. दैट इज अ केमिकल चेंज. देखिए, आप एक पेपर है उसको कट कीजिए, कट करने के बाद पेपर पेपर ही रहेगा, उसकी कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आएंगे. लेकिन आपने उस पेपर को जला दिया है, अब जो ऐश है, क्या ऐश से वापस पेपर आ सकता है? नहीं. तो ये कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज. When iron is exposed to humid air, it rusts and a red layer can be seen on it. This is called corrosion. Corrosion is a chemical change. Making curd from milk and cooking food are also examples of chemical changes. आपने आयरन में, लोहे में जंग लगते हुए देखा होगा, उसमें एक रेड कलर की लेयर होती है जिसे कि रस्ट कहते हैं, यानी जंग. तो इसे हम कहते हैं कॉरोशन, और ये भी आपका केमिकल चेंज होता है. इसी तरह से जब हम दूध से दही बनाते हैं या खाना बनाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स है केमिकल चेंजेस के, क्योंकि हम इन्हें रिवर्स नहीं कर सकते. Expansion and contraction. Expansion. In this process, the size of the matter increases. When the substance is heated, the particles start moving rapidly. Because of the increased movement of particles, they take up more space and thus expand. Thus, the increase in the size of matter on heating is called expansion. देखिए, expansion में क्या होता है कि matter का size increase हो जाता है. कैसे? हीट करने पे, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन. कंट्रैक्शन. इन दिस प्रोसेस द साइज ऑफ मैटर डिक्रीजेस. व्हेन द सब्सटेंस इज कूल्ड, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स स्लोज डाउन. बिकॉज ऑफ द डिक्रीज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दे टेक अप लेस स्पेस एंड thus contract. Thus, the decrease in the size of matter on cooling is called contraction. Contraction क्या होता है कि मैटर का साइज डिक्रीज हो जाता है. डिक्रीज कब होगा? कूल होने पे. एक्टिविटी टाइम. व्हेन द लिड ऑफ जैम जार डजंट ओपन इजीली, डू दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स. आप कभी जब जैम का ढक्कन खोल रहे हैं और वो आपसे ना खुले तो आप ये एक्टिविटी करें, बट एल्डर्स की प्रेजेंस में. Take some hot water in a big bowl, invert the jar and dip the lid in hot water for a little time. After some time, the lid can be opened easily and the lid gets slightly expanded. Thus, the jammed metal lid of a jam jar can be opened by heating. आप क्या करेंगे? हॉट वाटर लेंगे एक बिग बोल में और आप जार को इन्वर्ट कर देंगे, यानी उसका जो ढक्कन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा पानी में. उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसे निकालेंगे और आपका जो ढक्कन है, जो जैम्ड मेटल लिड है, वो इजीली ओपन अप हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने इसको हॉट वाटर में डाला और हॉट वाटर में डालने से फिर थोड़ा सा आपका क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया. Let's remember, any substance that has mass and occupies a space is called matter. The molecules are so small that they cannot be seen with naked eyes. Matter is made up of molecules. Molecules are made up of atoms. कोई भी सब्सटेंस जिसका मास होता है और वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे कहते हैं मैटर. एंड आपके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते. मैटर बने होते हैं मॉलिक्यूल से एंड मॉलिक्यूल्स बनते हैं
एटम से। Matters can be classified into elements and compounds. A physical change is a change in which no new substance is formed. In a chemical change, when there is a chemical reaction, a new substance is formed and energy is either given off or absorbed. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें या तो एनर्जी गिव ऑफ होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन, द डिक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। अगर मैटर का साइज इंक्रीज होता है हीट करने पे, उसे एक्सपेंशन कहते हैं, एंड अगर मैटर का साइज डिक्रीज होता है कूल करने पे, उसे हम कहते हैं कंट्रैक्शन। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।